सो जब अपने जो भी लोग युद्ध में मारे गए थे उनको उनका दाह संस्कार करने के बाद जब वो जा रहे थे, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ बैठ के गांधारी, कुंती, द्रौपदी सबके साथ ही वॉज ग्रीविंग, है ना। ग्रीविंग हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो ग्रीविंग प्रोसेस होता है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है ना। हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रीव करना, आप कितने भी नॉलेजेबल हो और कितने भी आपको ज्ञान हो, लेकिन जो ग्रीविंग होता है, गिविंग प्रोसेस इज ए वेरी नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। मैंने डिस्कस करा था हाउ आई फेल्ट, जब हमने अपने पापा का जो अंतिम संस्कार करा था उससे, हाउ अपलिफ्टिंग वाज इट, और कैसे हम लोगों को वी हैड ए क्लोजर इन इट। तो यहाँ पर जब लेमेंटिंग हो रही है, इतनी सारी ग्रीविंग प्रोसेस हो रहा है, तो कैसे श्री कृष्ण भगवान ने दोबारा भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं बताया। ही वॉज देयर एज ए to to let people use his shoulders to cry, and he was there and he was empathizing with them, है ना। So today we're gonna start with verse number 5. So यहाँ पर हमने लास्ट वर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो लॉज हैं, भगवान के जो लॉज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, उसमें आपको कोई वो नहीं मिल सकती, देर इज नो मार्जिन ऑफ एरर इन देयर, है ना। तो लॉर्ड कृष्णा और मुनि दे बिगेन टू पैसिफाई दोज हु आर शॉक्ड एंड अफेक्टेड। तो हम लोगों ने पढ़ा था। टुडे वी विल स्टार्ट ऑन वर्स नंबर 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, verse number 5. साधयत्वा जातशत्रुः स्वयं राज्यं कितवैर्हतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कश्च कचस्पर्शतायुषः। The clever Duryodhan and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. है ना, कैसे बोल रहे हैं ना कि बाकी सारे लोग मर गए, क्यों? बिकॉज दे हैव रफ हैंडल्ड द हेयर ऑफ क्वीन द्रौपदी। जो 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 डिवोटीज होते हैं उनका जो भी बंदा, कोई कोई भी डिवोटीज का अहित करता है ना, वो उसका कभी भला नहीं हो सकता, है ना। जो डिवोट इसलिए कहते हैं जो वैष्णव अपराध होता है वो सिर्फ हमारी भक्ति के लिए नहीं, वो वैष्णव अपराध वैसे भी बहुत खराब होता है। इन द सेंस, जो वैष्णवों की निंदा करता है या वैष्णवों के साथ अत्याचार अत्याचार करता है ना, उसका भक्ति तो खैर नष्ट होती है, उसकी उसकी जो मटेरियल लाइफ होती है वो भी नष्ट हो जाती है ना। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। परपट पड़ेगा कोई? I can read, Prabhu. यस प्लीज। So do you want me to read, Prabhu? Yes, Mataji, you can read, Mataji. Thank you, thank you. In the glorious days or before the advent of the age of Kali, the Brahmanas, the cow, the women, the children, and the old men were properly given protection. The protection of the Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for the attainment of spiritual life. Second, the protection of cows maintain the most miraculous form of God, that is, milk, for maintaining the finer tissues of the brain, for understanding higher aim of life. Third, the protection of women maintains the chastity of society by which we can get a good generation for peace, tranquility, and progress of life. The protection of children gives the human form of life its best chance to prepare the way of liberty from material bondage.
Such protection of children begins from the very day of the begetting a child by the purification process of Garbhadhana Sanskar, the beginning of pure life. The protection of old men gives them a chance to prepare themselves for better life after death. This complete outlook is based on factor leading to successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. The killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them, one loses one's duration of life. In the age of Kali, they are not properly protected, and therefore the duration of the life of the present generation has shortened considerably. In the Bhagavad Gita, it is stated that when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called Varna Shankara. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. Duhasana, a brother of Duryodhana, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. Hare Krishna. देखो, शिला प्रभुपाद is such a expert in deciphering what this purpose this translation is saying. यहाँ पर क्या हो रहा है कि कलयुग से पहले किन 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 लोगों को प्रोटेक्शन मिलता था? ब्राह्मण को, काउज को, विमेन को और चिल्ड्रन को, है ना, एंड ओल्ड मैन, सबसे इंपॉर्टेंट ना, दे वर गिवन प्रोटेक्शन. ठीक है, अब क्यों मिलता था और उससे क्या फर्क पड़ता था, ये शिला प्रभुपाद ने वन बाय वन बताया. जब हम ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करते थे तो वो लोग क्या करते थे कि दे विल मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्णा और आश्रम. वर्ण, 4 वर्ण होते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी. ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मेंटेन करना, मतलब मेंटेन उसकी सैंटिटी को बना के रखना ब्राह्मणों का काम था. कैसे? ब्राह्मण बताते थे, ब्राह्मण गाइड करते थे क्षत्रियों को कि एक ट्रू क्षत्रिय कैसे बनना है. ब्राह्मण ही सिखाते थे वैश्यों को कि वैश्यों का क्या धर्म है, क्या करना चाहिए उनको, शूद्रों का क्या धर्म है, क्या करना चाहिए. ब्राह्मण ही लोगों को शिक्षा देते थे, जो बच्चों को, जिनसे बताया जाते हैं कि ब्रह्मचार्य आश्रम का कैसे पालन करना है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में कैसे जाना है, वो भी ब्राह्मण समझाते थे. फिर उसके बाद वानप्रस्थ कब जाना होता है, उसमें क्या क्या करना होता है, वो भी ब्राह्मण बताते थे. और अल्टीमेटली सन्यास जो लेते हैं वो भी ब्राह्मण ही सिखाया करते थे, कैसे सन्यास लेना है और क्या क्या करना चाहिए सन्यासी को, है ना. तो जब ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट करते थे तो ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, इनको भी प्रोटेक्शन मिलता था. ठीक है, अब जब काव को प्रोटेक्शन मिलता है तो उससे क्या होता है, उससे 2 चीजें होती है. यहाँ पर तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि भाई मेंटेनिंग फाइनल टिश्यू ऑफ द ब्रेन. देयर इज अ रिसर्च दैट इज डन बाय अ पोलिश साइंटिस्ट. ही वाज अ फिजिशियन बिफोर and then he did I think he got a he was a Nobel laureate for a microbiology project, जिसमें he actually spoke about उसकी थीसिस में एक सेक्शन था जो काउ मिल्क के ऊपर था, because it actually helps protect the finer tissue of the brain. क्या होता है कि हायर नॉलेज, मतलब कॉम्प्लेक्स नॉलेज और क्रिएटिविटी के लिए जो गाय का दूध होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना. और कहते हैं अगर आपको अपनी भक्ति में थोड़ा सा, भक्ति को भी बढ़ाता है गाय का जो मिल्क है ना, वो हमारे ब्रेन में जो टिश्यूज होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारे लॉजिकल पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है, जिससे हमारे लिए भगवान की सत्ता को अपनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है. ठीक है, एक तो ये हुआ. दूसरा और दूसरा जो मेन है, एक और एम है काऊ का प्रोटेक्शन का, कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होता है. कैसे? क्योंकि काऊ प्रोटेक्शन जो है उससे एक तो बहुत सारी चीजें होती है. एक तो ये चीज होती है कि व्हेन यू प्रोटेक्ट द काउज, तो हमारा जो एनिमल का एक्चुअली जो फूड साइकिल है और जो बैलेंस है बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, वो बना रहता है ना. गायों को
सिर्फ गाय को नहीं, बाकी लोगों को भी, बाकी जानवरों को भी बचा के, बट गाय को मेनली, क्योंकि उससे क्या होता है कि यू कैन एक्चुअली घर में कभी भी वो नहीं आएगा, कभी भी भूखमरी नहीं होती है। जिसके घर में गाय होती है दे कैन नॉट स्टार्व, क्योंकि गाय के दूध से, गाय इतना दूध देती है कि यू कैन ड्रिंक, यू कैन सेल, उसके बछड़े को भी मिल जाएगा, एवरीवन। गाय अपने जितना बछड़े को पीना होता है उससे 7 से 8 गुना, जबकि कई लोग कहते हैं 11 गुना दूध देती है। एक बछड़ा है लेकिन 11 बछड़े के बराबर का दूध देती है गाय, है ना। तो वो किस, इसीलिए उनको गाय को माता बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ बछड़ा ही नहीं, हम भी उनका दूध पी रहे होते हैं, इसलिए उनको माता बोला जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि जिसके घर में काऊ होगी ना, उसके घर में वो तो नहीं होगी कभी भी, क्या बोलते हैं, दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि गाय का दूध बेच के दे कैन इजिली सस्टेन देयर लाइफ, है ना। और तीसरा, प्रोटेक्शन। विमेन को क्यों प्रोटेक्शन करना चाहिए? क्योंकि अगर औरतों को प्रोटेक्शन मिलेगा तो दे विल बी मोर चेस्ट, है ना। नाउ कई बार विमेन को लगेगा कि यार, हाउ, व्हाई डू वी नीड प्रोटेक्शन, व्हाई डोंट मेन नीड प्रोटेक्शन, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि अनस्क्रूपलेस मेन, है ना, दे कैन नॉट, जो मैन होते हैं ना, दे आर नॉट मेकर और फॉर्मर, दे डोंट कंट्रीब्यूट एज मच इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल नेक्स्ट जनरेशन, है ना। अभी मैं क्या, देयर वाज एन एड, आई कांट रिमेंबर कौन सी कंपनी का एड था, दे वर सेइंग दैट इफ यू वांट, इफ यू इफ यू वांट कि लड़कियों को प्रोटेक्शन मिले और उनको डर नहीं लगे बाहर सड़कों पे घूमने घूमने के लिए, देन व्हाट as a parent we need to do is we need to create an environment, and we need to create environment which is amazing for boys, in little kids in the house, boys, ताकि जब वो, उनको ऐसे संस्कार दें कि वो बड़े होकर ऐसा काम ही नहीं करें कि औरतों को बाहर निकलने में डर लगे, है ना। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि व्हेन द, एक और, देयर इज अ वेरी गुड सेइंग, आई थिंक अजय शेट्टी की मैं वो सुन रहा था, जय शेट्टी ने बोला, द रीजन व्हाई पीपल चीट, हस्बैंड और वाइफ दोनों, है ना, द रीजन व्हाई पीपल चीट इज बिकॉज दे डोंट फील प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर पार्टनर्स। प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रोटेक्शन, एवरी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन, और क्या बोलते हैं, they don't feel safe inside the house, in the sense कि they don't have trust in their husband, and if they are not getting any love from husbands, or husbands are not getting love from wife, that is probably the one of the reasons why there is cheating, है ना। So if women are not protected, it can actually give rise to bad generation, है ना। तो तो अगर हम लोग विमेन को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे अर्जुन ने, अभी हम लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसमें अपने भक्ति वृक्षा क्लास में, उसमें अर्जुन कह रहा है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो जब वो बोल रहा है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, जब वो इतना कंफ्यूज हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने पहले क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि देयर आर रीजंस व्हाई आई शुड नॉट फाइट। वो जो उसने कृष्णा को रीजन बता दिए, उसमें से एक रीजन ये है, हम लोग सारे आदमियों को मार देंगे तो औरतें होंगी, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और फिर अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो लोग उनका फायदा उठाएंगे। दूसरे जो जो लोग बहुत नीची कैटेगरी के जो लोग हैं, जो बहुत ही घटिया लोग हैं, वो इन औरतों का फायदा उठाएंगे, उससे उनका जो वर्ण शंकर संतानें पैदा होंगी, जिसके कारण पूरा का पूरा जो सोसाइटी है नष्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई गुड जनरेशन के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए और प्रोग्रेस ऑफ लाइफ के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द विमेन शुड फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ, है ना, in the house, outside the house, in their extended family, even in अपने extended family के पास जाती है तो भी she should feel protected, and protected means physically as well as emotionally and mentally protected, है ना। फिर उसके बाद जो चिल्ड्रन, हाँ मिथुल प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आपने जैसे बोला ना कि वुमेन्स प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, जिससे
अगर नहीं हो गए तो ये वर्ण संकर वैसा सारा कुछ इश्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जब जब अर्जुन कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन ने ये रीजन एक बताया था कि सब मेंस मर जाएंगे तो वुमेन्स बचेगी, तो ये सारे इश्यूज हो गए। इसके लिए मैं फाइट नहीं करना चाह रहा हूँ। हाँ। तो सामने से भगवान ने ऐसा बोला, नहीं तुम्हें फिर भी फाइट करना है। तो भगवान का इसके लिए क्या आंसर अच्छा, हाँ। एक्चुअली भगवान ने ही बोला था कि जो काफी सारे आंसर्स थे, ठीक है, लेकिन जो लेकिन क्योंकि एक आंसर भगवान का ये था कि देखो, ये जो लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, है ना, ये सारे लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, ये ऑलरेडी मर चुके हैं। दे ऑलरेडी डाइड। भगवान आगे जाके भगवद गीता में बोलेंगे, दे ऑलरेडी डाइड, आई ऑलरेडी किल्ड देम बिकॉज दे आर, उनके कर्मों के हिसाब से मैंने उनको सबको यहाँ इकट्ठा करा है। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा इनको, है ना, है ना। और फिर जब उसके बाद जब हाँ, और उसका फिर भगवान ने ये रीजन नहीं दिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला कि विमेन विल बी प्रोटेक्टेड और नॉट। ये पूछ रहे ना भगवान ने क्यों नहीं बोला कि विमेन विल बी प्रोटेक्टेड। भगवान ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान ने उसमें एक चीज, एक वर्स आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। तो भगवान उसको बोलते हैं कि अहम सर्व, मैं ही सब जगह हूँ, ठीक है, काल भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, और ये जो कर रहा है ये भी मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान की यह है कि ही विल नेवर डू समथिंग विच इज नॉट परफेक्ट। द ओनली एंटिटी इन द होल यूनिवर्स, मटेरियल स्पिरिचुअल सब जगह मिला के, विच कैन नेवर मेक ए मिस्टेक इज भगवान, है ना। तो भगवान ने बोला कि all you whatever you saying, you're all got material reasons, but you have to understand प्रकृति क्रियमाणा। और भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है जो ये सारा कुछ करवा रही है, वो कौन है, वो मेरी शक्ति है। तो इसका मतलब मैं ही करवा रहा हूँ इसको, और मैं करवा रहा हूँ, तो आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट व्हाट्स गोना हैपन विद द वीमेन एंड चिल्ड्रन। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या होगा उनका, लेकिन उन्होंने ये बताया कि बिकॉज आई एम सेइंग दैट इट हैज टू बी परफेक्ट, है ना। और एक्चुअली हुआ क्या उसके बाद, विमेन वर स्टिल प्रोटेक्टेड, क्योंकि जैसे ही जब सबको मार दिया, ठीक है, सारे सारे क्षत्रियों को, सब सारे क्षत्रिय मर गए, इवन पांडवों की तरफ से भी, मतलब पांडव जो थे ना, 5 पांडव और यही लोग बचे थे, बाकी सारी उनकी सेना में से भी सब लोग मर गए थे, और वहां से भी सारे लोग मर गए थे। तो जो एक्चुअल क्षत्रिय थे बहुत कम बचे थे, लेकिन फिर भी पांडवों ने तब तक वहां पर राज करा जब तक अपने परीक्षित महाराज, when Parikshit Maharaj was ready to have become a king, then they left. So until then they protected it, and then after that अपने परीक्षित महाराज प्रोटेक्टेड द women and children. So कहने का मतलब ये है कि बिकॉज भगवान को ये पता था कि 5 पांडव बचेंगे एंड दे विल लुक आफ्टर एवरीवन। तो भगवान, उनका यही कहना था, क्योंकि क्या होता है कि जब सारे क्षत्रिय मर जाएंगे तो प्रोटेक्ट करने के लिए कौन रहेगा, लेकिन इफ यू हैव अ रियली नाइस वेरी गुड किंग, ही कैन मैनेज, है ना, somehow. So does it make sense? हाँ हाँ प्रभु जी, और ये गुड दूसरा क्वेश्चन प्रभु। हाँ हाँ, समझ गया प्रभु जी, ये परफेक्ट है। हाँ। दूसरा कि जैसे बोला ना भगवान ने कि मैंने इन सबको मार दिया है, यानी चलो मरने वाले तो सब मरने वाले हैं। अगर हम्म। वह वो युद्ध नहीं हुआ होता तो भी हम्म। वो मर चुके थे, ठीक है, क्योंकि सबका ऑलरेडी भगवान ने डेस्टिनी डिसाइड कर ही दी गई, ये आज मरेगा, ये कल मरेगा, परसों मरेगा। अगर वो युद्ध हुआ ही नहीं होता, तो तो भी फिर मरते हैं। वो तो हाँ, वो फिर भी वो हाँ। मुझे बात वो समझ नहीं आ रही, ऐसा भगवान ने क्यों बोल दिया कि मैंने सबको मार दिया है। हाँ, एक्चुअली क्या है, भगवान ने बहुत बिल्कुल क्लियर बोला था अर्जुन को कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान ने भगवत गीता में ये तो बोला है कि ये लोग क्योंकि जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, उन्होंने दिखा दिया, एवरीबडी वाज गोइंग इन हिज माउथ। तो भगवान ने बोला, आई हैव ऑलरेडी फिनिश देम, नाउ आई वांट यू टू टेक द क्रेडिट, है ना। Even if you don't do it, these guys will die. Now, because you are my friend and my devotee, I want them to be finished via you, to create an example. And I want to give you credit. और उस वर्ष में शिला प्रभुपाद जब अपना वो लिखते हैं, परपट लिखते हैं, तो उन्होंने वो ये भी बता रहे थे कि उनको भी किसी ने पूछा
एक्चुअली सॉरी परपट में नहीं था, एक ऐसी जो कन्वर्सेशन शिला प्रभुपाद की कन्वर्सेशन में था। शिला प्रभुपाद से पूछा, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर, दे वर सो हाईली एलिवेटेड, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था मेरा सेनापति आएगा, वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में हर जगह पूरे दुनिया के कोने कोने में हरि नाम करवाएगा मेरा सेनापति। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में इतना वो नहीं था कि कैलिबर की वो कर सकते थे। तो शीला प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया, उसने बोला कि जिस तरीके से कृष्णा वॉज केपेबल ऑफ किलिंग एवरीवन, but he wanted Arjun to take credit of it because he wanted to say कि नाम है भक्त्या प्रणशति, है ना। अर्जुन को बोला जाके डिक्लेयर कर दो कि मेरे जो भक्त है ना उन्हीं को क्रेडिट मिलेगा और दे विल नेवर बी वैंक्विश्ड। ऐसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर ने दे हैव यूज्ड मी एज ए निमित्त मात्र, है ना। और निमित्त मात्र मेरे को बना के भेजा है ताकि दे वांट टू गिव मी क्रेडिट बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव that someone like me, even someone like me, can go and revolutionize if they have a mercy of their guru, है ना। तो इसी तरीके से उस समय भी जब भगवान ने बोला आई हैव ऑलरेडी किल्ड देम, भगवान खुद ही बोलते हैं क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली, कोई उसमें वो नहीं था कि दे ऑलरेडी डन, आई वांट यू टू टेक द क्रेडिट, है ना, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो दैट यू आर आप में मतलब यू आर एक्चुअली अ वेरी गुड वॉरियर, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड वॉरियर दैट डजंट मीन कि these people are gonna killed because you're a good warrior. These people will be killed because you're a warrior and you have my permission to kill, है ना। तो इसलिए हुआ। Does it make sense? थोड़ा बहुत। Thank you, bro. ओके, सो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि हाउ वर्ण शंकर का। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये भी एक और चीज है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस टू प्रिपेयर द वे फॉर way of liberty from material bondage. Now one of the main चीज जो, अरे यार वो श्लोक पता नहीं कहाँ गया, मैंने इसमें ना वो करके रखा था, ये है क्या? नहीं ये नहीं है यार, इसमें एक श्लोक था जो मैंने निकाल के रखा था बट इट्स गॉन एनीवे। तो वो श्लोक क्या था जिसमें भगवान कहते हैं, जिसमें ना बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि गुरु न शिष्यात पृथ्वी न शिष्यात जननी न शिष्यात पिता न शिष्यात। तो एक आदमी को गुरु बनने का, पिता बनने का, माता बनने का और राजा बनने का, डेमी गॉड बनने का कोई हक नहीं है अगर वो अपनी प्रजा को, अपने डिपेंडेंट को वो भगवत धाम नहीं पहुंचा सके, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे घर में अगर कोई बच्चे हैं तो हमारा ये धर्म है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग उनको भगवत धाम पहुंचा सकें और उनको पहुंचने का रास्ता दिखा सकें। ये हमारी ड्यूटी है, और अगर हम ये ड्यूटी नहीं निभा सकते हैं तो हमें माँ बाप बनने का कोई हक नहीं है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट्स फ्रॉम गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार क्या होता है कि बिफोर कंसीविंग अ चाइल्ड, a couple goes to the guru and ask Gurudev, we want to bring a child in this world, can I have your blessing? गुरु जब हाँ बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, then they go and conceive a child, and before they conceive a child, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में गर्भाधान संस्कार कैसे होता है? देयर इज ए यज्ञ दैट हैपेंस, है ना। कंसीव करने से पहले एक यज्ञ होता है और उस गुरु से आगे लेने के बाद वो यज्ञ होता है। उस यज्ञ के बाद हस्बैंड एंड वाइफ दे डू 50 राउंड्स ऑफ चैंटिंग एंड देन दे कंसीव अ चाइल्ड, दोनों 50-50। आप सोचो व्हेन यू हैव डन 50 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, इट टेक्स लाइक अराउंड 8 hours of chanting। 8 hours chanting के बाद when you start doing, when you are conceiving a child, the only thing that you have in your head is not lust, it is actually prayerful mood में we are inviting a very holy sacred soul to come into this world who is gonna be a devotee, and they can actually, और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, और उसके बाद उस बच्चे के पास वो वैसे जो एक बहुत अच्छी सोल आई है, लेकिन फिर भी उस सोल के पास एक
फ्री विल है कि ही कैन गो आइदर बिकम ए नॉन डिवोटी और डिवोटी। तो वो जो उसको दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एक चॉइस जो दी जाती है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट, कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि योर किड्स हैव अ चॉइस, दे अंडरस्टैंड दे हैव अ चॉइस, कि या तो मैं भक्ति में आऊं या भक्ति में ना आऊं, है ना। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, इवन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इवन उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, गर्भाधान संस्कार से। उसके बाद जब गर्भाधान संस्कार हो जाता है, उसके बाद काफी सारे संस्कार होते हैं, जिसमें अन्नप्राशन संस्कार और ये संस्कार, नामकरण संस्कार, ये सारे काफी सारे संस्कार आते हैं। तो ये सारे संस्कार इसलिए होते हैं कि वी वांट टू प्रोटेक्ट द किड्स, एंड हम लोग चाहते हैं कि वी विल गिव देम ए बेस्ट चांस टू गेट लिबरेशन, है ना। इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से हमें निकालना है, एंड दिस इज दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा डिफाइन करा है यहाँ पर। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। अब ओल्ड जो पीपल होते हैं इंडिया में, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड कि इंडिया में अभी कुछ बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। देयर इज दिस गाय हु, उसका वो क्या करता है, ही गोज अराउंड एंड ही रास्ते में जो बुढ़े और बुढ़ी बूढ़े लोग बैठे होते हैं उनको लाता है, उनको एक आश्रम में रखते हैं, उनको उनकी इलाज कराते हैं। और 90% ऑफ दोज पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट, ओल्डर पीपल, उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया होता है। उनके बच्चों ने उनको, कई लोग क्या बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को लेके जाते हैं कि चलो मैं आपको वृंदावन ले जा रहा हूँ, और किसी ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं और एक किसी ट्रेन स्टेशन पे उतर के चले जाते हैं। और फिर पेरेंट्स के पास ना तो पैसा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो बेचारे भीख मांग के किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। तो ये आदमी जाके उनको पकड़ के उनको लेके उनको आश्रम में रखता है, उनको उनकी देखभाल करता है। और ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरी तरीके से अपने बच्चों से दुखी हैं, उनके लिए भक्ति, और भक्ति क्या, उनके लिए पूरे दिन दे आर ओनली स्ट्रगलिंग टू स्टे अलाइव बिकॉज दे वांट टू हैव सम फूड और मेडिसिन, वो नहीं मिल रहा है। तो प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल मीन्स वी कैन गिव देम प्रोटेक्शन सो दैट दे कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दे गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, है ना। अगर आदमी सुबह से शाम तक यही सोचता रहेगा कि अब मेरे को नेक्स्ट मील कहाँ से मिलेगा, हाउ कैन दे एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड, है ना। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ड्यूटी ऑफ किड्स टू प्रोटेक्ट देयर ओल्ड मैन। और एक्चुअली सिर्फ नॉट किड्स, है ना, एवरीवन हैज, we should protect not only just our parents, we should protect our uncles, aunties, even neighbors, like हमारे ऑस्ट्रेलिया में तो कितने सारे लोग हैं, नेबर्स हैं जो बिल्कुल ओल्ड उसमें रहते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू गिव देम प्रसाद एवरी नाउ एंड देन, somehow help them go back home, back to Godhead somehow, है ना। So that is our duty, ठीक है। So ये 5 चीजें श्रील प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा से इसमें समझाया है। उसके बाद बहुत अच्छी चीज श्रील प्रभुपाद ने इसमें बोली है, और जब मैं इसका लेक्चर नोट्स बना रहा था तो उसमें बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये जो लोग हैं, क्या बोलते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, दे आर नॉट पीपल, दे आर एक्चुअली पॉलिश्ड कैट एंड डॉग्स, है ना। साफ साफ बोलता है, बिकॉज ही कैन से दैट, है ना। तो और कहते हैं कि ये जो 5 लोग हैं, जो 5 चीजें हैं, जैसे बच्चे, बूढ़े, औरतें, और काउज और ब्राह्मणा, इन लोगों को जो मारता है ना, दे हैव वेरी इज टोटली, और इनको मारना फॉरबिडन इसलिए है बिकॉज इट लूजेस वंस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। और ये पता है, व्हेन दे से ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है कि दे विल एक्चुअली हैव, अब कोई बोलेगा दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कई लोग होते हैं वो 90-90 100 साल तक जीते हैं और पूरी जिंदगी ये देख बीफ खाते हैं, है ना। एक्चुअली व्हेन दे टॉकिंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, दीज पीपल हैव, जिस तरह का इनको एनवायरनमेंट यहाँ मिल रहा है, पॉल्यूशन कम है, एवरीथिंग इज देयर, है ना, सब सारी चीजें थोड़े से लेवल में कम है, मतलब काफी एडवांस्ड है यहाँ पर लोग, दे शुड बी एक्चुअली लिविंग फॉर 120 130। तो when they are dying in the age of 90, they are actually not they are still losing one's duration of life because उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करे हैं जिसके कारण ऐसे देश में वो लोग रह रहे हैं जहां पर कम से कम इंडिया जैसी हालत नहीं है। लेकिन
ऐसे देश में रहने का क्या मतलब है, व्हेन इसके बाद दे विल इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल करने वाले हैं ये लोग, दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो आइडिया कि नरक में कितनी बुरी बुरी हालत होने वाली है इनकी, जो लोग ये लोग मीट वगैरह खा रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, दे गोना स्ट्रगल सो मच, उनको पता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बोलता है आई एम गोना गिव यू $1 million, है ना, आई गिव यू $1 million, बट आई गिव यू $1 million एवरी मंथ, बट आफ्टर 1 year आई विल कम एंड किल यू, है ना। ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आई वॉन्ट गिव यू $1 million एवरी मंथ, है ना, मतलब $12 million नहीं होंगे आपके पास बाय द एंड ऑफ 1 year, एंड आई वॉन्ट किल यू, यू कैन जस्ट लिव योर लाइफ। कोई फूलिश ही होगा वो विल गो फॉर $12 million, है ना। या फिर कोई ऐसा बंदा होगा, ठीक है $12 million लेके अपने पेरेंट्स को दे दूंगा, जो भी है वट त्याग करने के चक्कर में। बट अदरवाइज पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार दिस इज नॉट द बार्गेन, इट्स नॉट अ गुड बार्गेन टू लूज योर लाइफ फॉर $12 million, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक अच्छी जिंदगी मिल जाए तो लोग चोरी क्यों करते हैं ना। अभी देर इज अ फ्रॉड, वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी, देर इज मैंने एक चीज ऑर्डर करी थी ऑनलाइन, है ना, तो मैं उसको बता रहा था मैंने ऑर्डर करी थी, मैंने 10 चीजें ऑर्डर करी थी बिकॉज देर वॉज ए डिस्काउंट 50% ऑफ, तो मैंने 10 चीजें ऑर्डर करी थी, और इट वॉज कमिंग फ्रॉम ताइवान, है ना, तो मेड इन ताइवान। तो ताइवान इज ए वेरी, चाइना के बाद एक ताइवान है, काफी अच्छी चीजें, हॉट व्हील्स वगैरह वहीं बनती है, एनीवे, तो आई थॉट इट्स अ लेजिटिमेट थिंग, एवरीथिंग वाज गुड, वेबसाइट वाज गुड, मैंने उसको ऑर्डर करा। और फिर जब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, मैं रिव्यूज भी पढ़े, एवरी रिव्यूज वर गुड एज वेल। फिर एनीवे मैंने ऑर्डर करा, एंड देन दोस 10 आइटम्स वर कमिंग इन अ बॉक्स। तो लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन तक उसका वो नहीं आया कि कंफर्मेशन की शिप हुआ है कि नहीं हुआ है, शिपिंग डिटेल्स नहीं आया। तो फिर मैंने उनको ईमेल करा, तो उनका ईमेल आया नहीं, वो शिपिंग थोड़ा सा डिलेड हो रहा है, बट इट विल हैपन। फिर मेरे को उन्होंने ट्रैकिंग नंबर भेज दिया कि हाँ देयर समथिंग हैज बीन शिप्ड। उसको आने में 3 हफ्ते लगे, है ना। 3 हफ्ते के बाद आई रिसीव्ड 10 चीजें नहीं थी, 10, एक पैकेट था, उसमें 10 टूथब्रश थे। तो एटलीस्ट उन्होंने एक चीज सही बोली कि देयर वाज 10 थिंग्स, है ना बट देयर वाज ओनली 10 टूथपेस्ट एंड कॉस्ट मी लाइक अराउंड $60, है ना, $60। तो मैं ये सोच रहा था कि दोस पीपल दे वुड हैव अर्नड, मेरे $60 में से अगर ये $5 का है, तो दे वुड हैव अर्नड $55, ठीक है। मेरे को चूना लगा के दे हैव अर्नड $55, दे हैव अर्नड सो मेनी पीपल, काफी सारे लोगों से उन्होंने करा होगा। नाउ दे आर हैप्पी राइट नाउ, दे आर वेरी हैप्पी कि यार मजा आ गया, लाइक आई हैव गॉट सो मच मनी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। they have to pay with interest, and they have to pay with their blood, they have to pay with their like everything. So they don't understand it. So जो समझदार होते हैं, people who are intelligent, they understand that anything that I am doing now that is giving me pleasure may not be good for me. इसको कहते हैं प्रेयस, श्रेयस और प्रेयस होता है। श्रेयस क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम अभी कर रहे हैं जो थोड़ी सी अच्छी ना भी लगे हमें, है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे अच्छे के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम चैंटिंग सुबह उठ के जल्दी उठ के चैंटिंग करनी होती है, इट्स नॉट ए वेरी प्लेजेंट थिंग एवरी मॉर्निंग। हम लोग उठते नहीं हो रहे, वाह तो मजा आ जाएगा, जल्दी उठ के चैंटिंग करेंगे, है ना। तो वी गेट अप इन द मॉर्निंग, वी स्टार्ट चैंटिंग, लेकिन उस चैंटिंग को करने से हमें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन हमें पता है अल्टीमेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, इट इज कॉल्ड श्रेयस। और दूसरा होता है प्रेयस, प्रेयस का मतलब होता है अभी मजे कर रहे हैं, बाकी देख लेंगे कब। जैसे ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, अभी इंजेक्शन लगा लिया थोड़ी देर के मजे के लिए, बाद में कितनी तकलीफ हो रही है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। इसी तरीके से गैम्बलिंग वगैरह, या फिर कोई भी चीज, जैसे कई लोग होते हैं जो दे एडिक्टेड टू फेसबुक, अभी मजा आ रहा है देखने में, लेकिन अल्टीमेटली वो बुरा है चीजें, उसको कहते हैं प्रेयस। तो हम लोगों को प्रेयस से बचना है और श्रेयस की तरफ जाना है ना। शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एज ऑफ कली में प्रॉब्लम क्या है कि दीज 5 पीपल दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर जो लोग पैदा हो रहे हैं दे आर वर्ण शंकर। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल ऑन हेरल्डसन, उसमें बताते हैं कि 90% ऑफ द प्रेगनेंसी इन ऑस्ट्रेलिया
90% of pregnancy in Australia happens on a weekend after alcohol, है ना. When गर्भाधान संस्कार क्या होता है? When your consciousness is very pure, then you conceive, then you're inviting a soul which is pure. उसका उल्टा क्या होगा? If you are drunk and if you are lusty, you will invite souls which are वर्ण संकरा, है ना. तो यहाँ पर, और फिर उसके बाद दुशासन के लिए बोला. दुशासन ने क्या करा? दुशासन ने द्रौपदी को इंसल्ट करा, तो देखो उसकी और उसके सारे भाइयों की क्या हालत हुई. एंड दीज आर सम ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ दैट कृष्णा वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर, है ना. ऑलराइट, हाउ आर वी गोइंग विद टाइम? लेट्स सी हाउ दिस इज द लास्ट वन. एक्चुअली it's 45 na, 40. We'll stop here. Actually, we'll see if there are any questions and comments. We'll do number 6 tomorrow. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. क्योंकि नेक्स्ट वर्स भी थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए. Anybody has any comments, any questions they want to raise? Okay. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद. हाँ, क्या बोले प्रभु? नॉर्मल क्वेश्चन. निशांत प्रभु की मम्मी को कैसा है, माता जी को? अरे हाँ, उनकी मम्मी ठीक नहीं है. कल ही मेरी बात हुई निशांत प्रभु से. तो मतलब ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज्यादा नहीं है, है ना.